So shapes of molecules, and when we say molecules, we are dealing with covalent compounds only in which covalent bonds are present. आयनिक कंपाउंड्स की जो शेप्स होती हैं वो जिस तरह हम कोवलेंट कंपाउंड के भी शेप्स पढ़ेंगे उस तरह नहीं होते. उनका 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर होता है. उस लैटिस स्ट्रक्चर की भी स्ट्रक्चर्स की भी शेप्स होती हैं जिनमें कुछ नॉन कॉमन नेम्स शायद आपने क्यूबिक लैटिस भी है और सेंटर क्यूबिक सेंटर्ड भी है, मोनोक्लिनिक भी है, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, वो शेप्स भी हैं. उन्हें हम सॉलिड्स की शेप्स में डालते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड्स. तो वो सॉलिड्स की शेप्स हैं. वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो एफएससी के कोर्स में है वैसे, but these are not included in the course of A levels. In A levels, in AS level, we have to cover the shapes of covalent compounds, covalent molecules only. To explain the shapes of the molecules, there are numerous theories, but we will be covering two concepts to explain the shape of molecules. One is called valence shell electron pair repulsion theory, which is in abbreviation VSEPR, or in quick we say Vesiper theory. So theory, Vesiper theory जो है ये हमें क्या बताती है? What does this theory tells us about the shapes of the molecule, how these shapes are formed? So according to this theory, when the covalent molecule is formed, there is always a central atom and there are some surrounding atoms. Central atom की पहचान बहुत आसान होती है. जैसे CH4 है तो C के सराउंडिंग में सारे H लगे हुए हैं. तो C is your central atom and all 4 H atoms are the surrounding atoms or peripheral atoms. तो सेंट्रल एटम पहचानना कोई मुश्किल नहीं होता. ये वो एटम होगा जिसके ऊपर बाकी सारे एटम्स लगे हुए होंगे. तो आप जब कोवलेंट, व्हेन यू हैव मेड योर कोवलेंट बॉन्डिंग, after doing your covalent bonding you will very easily recognize which is the molecule, which of the atom is the central atom. So central atom जैसे BF3, for example in BF3 boron is your central atom, in ammonia NH3 nitrogen is your central atom, in water H2O, तो O के साथ 2H attached हैं, so O is your central atom. Similarly, in SF6, S is your central atom. In PCl3, P is your central atom. In aluminium chloride, AlCl3, aluminium is your central atom. So we will be focusing on central atom to decide the shape of a molecule. And we see that when the outermost shell of the central atom has made bonds, so there are pair of electrons in the outermost shell of the central atom. अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, ऑपोजिट स्पिन करके उन्होंने रिपल्शन कम की होती है, नो डाउट, लेकिन है तो नेगेटिवली चार्ज. और फिर एक पेयर और दूसरा पेयर और फिर तीसरा पेयर, जैसे मीथेन में देयर आर टोटल 4 बॉन्ड पेयर्स, इन अमोनिया देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन. तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम, दे repel, and due to repulsion, this theory says that this repulsion causes these electron pairs to move apart, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं. अब दूर हटने की कोशिश में ये नहीं है कि वो शेल से बाहर छलांग मार के कहीं भाग जाएंगे. They will not jump out of the shell, they will remain in the shell and they will try to adjust around the shell. अब उस जगहों पे जाने की कोशिश करेंगे जहां उनके दरमियान रिपल्शन सबसे कम हो. जैसे कि अगर इफ़ यू आर सिटिंग एज पेयर्स इन अ क्लासरूम बट दीज पेयर्स डू नॉट लाइक ईच अदर, तो आप कोशिश करेंगे कि आप रूम के किसी ऐसी जगहों पे बैठ जाएं कि आपकी दूसरे पेयर के साथ कोई बातचीत ना हो, वरना लड़ाई हो सकती है, रिपल्शन है आपके दरमियान, बट आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते. तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, in the valence shell of the central atom, they cannot leave or jump out of the outermost shell, but they will try to move apart within the shell so that there should be a minimum repulsion. The repulsion between them is minimized. जब वो मूव अपार्ट करते हैं तो जाहिर बात है कि उसमें जो the pair has one electron of the central atom and the other electrons of the surrounding atoms. तो सराउंडिंग एटम्स भी एडजस्ट होते हैं इन स्पेस. दे आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
तो जब वो मूव होके उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ रिपल्शन मिनिमम आ जाती है बिटवीन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम, तो फिर एक शेप जनरेट हो जाती है, एक शेप हमें मॉलिक्यूल की दिखाई देती है। अब वो शेप कैसे डिसाइड होनी है, उसके लिए एक थर्ड रूल और भी वी हैव टू स्टडी दैट। द थर्ड रूल सेज दैट द रिपल्शन ऑर्डर, वी नीड टू रिमेंबर दैट द रिपल्शन ऑर्डर इज दैट द lone pair has the highest repulsion. So these pair of electrons will stay as far apart as possible. ठीक है जी। देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैज स्लाइटली लेस रिपल्शन, तो वो इतना दूर ना भी हटें तो वो रह सकते हैं, उनमें रिपल्शन कम होती है। एंड बॉन्ड पेयर हैज लीस्ट रिपल्शन, सो दे कैन कम इवन क्लोजर। तो अगर कोई लोन पेयर होगा तो वो बॉन्ड पेयर्स को दूर हटाएगा अपने से, तो बॉन्ड पेयर उस बड़े मोटे रिपल्शन की वजह से वो दोनों बॉन्ड पेयर थोड़ा करीब आ जाएंगे क्योंकि उनके दरमियान रिपल्शन कम है। तो हम देखेंगे कि outermost shell in the central atom, how many bond pairs are there and how many lone pairs are there, and then to reduce the repulsions, the pair of electrons are adjusted in such a way that there is a minimum repulsion. So I have seen that somebody has raised the hand. Please, what is the question? Abdullah, you have raised your hand. What is your question? No, that was by mistake. Okay, so valence shell electron pair repulsion from its name it tells us that there should be a repulsion between electron pairs. But which electron pairs? The electron pairs of the central atom, not the electron pairs of the surrounding atoms. पहला रूल ये हो गया, ड्यू टू रिपल्शन these pair of electrons try to move apart while remaining in the outermost shell. वो थोड़ा दूर दूर हट के खड़े होंगे। अब जब वो थोड़ा दूर दूर हट के खड़े होंगे, when they will move apart, they will take their atoms, जो कि जिसने the atoms are surrounding atoms, also away from each other and arrange them in space. So when they arrange them in space, there will be a specific shape that will appear. And we need to learn what is the shape of the molecule depending on the number of electron pairs in the central atom. We will need to learn it. ठीक है, इसको याद रखना है आपने. Now I am going to show you a table in which we have a complete range. I have a complete range of all the shapes that can be taken by a molecule. So if you see the columns, so total domains means total number of pair of electrons. Generic formula means that it's a general formula. When we say AX, so A is your central atom and X is the surrounding bond pairs, or you can say bonded atoms. So bond pairs or bonded atoms. Yes, Sam. सर आप ये पूरी फाइल भेज सकते हैं ग्रुप के अंदर, ये जो आपके पास केमिकल बॉन्डिंग Even I have shared that with you, I believe, as a notes. If you don't have, tell I'll send you again. I'll send it to you in your notes as notes. Okay. So AX, I'll send it to you, but you need to understand what is A and what is X. So A is the central atom and X is the bond pairs. So AX means the central atom तो हमेशा एक ही होगा, but X, A is always one. कभी भी A is not two. A is always one, and X का साथ भी one का मतलब है it has only one bond pair with it. When you go to 2, the total domain in 2, so the formula could either be AX2 or AXE. AX2 stands for central atom has two bond pairs with it. X2 का मतलब है two bond pairs. Whereas AXE means A central atom is bonded with one bond pair X, and E stands for lone pair. Lone pair which is unshared pair.
So AXE stands for central atom A is having two pair of electrons. One is bond pair X and the other is a lone pair E. Similarly, if you go to three pairs of electrons, total domains 3 में जाएं, so you will see AX3. It means that central atom A has three bond pairs. It is bonded to three atoms. Whereas AX2E जो है इसका मतलब है कि it is bonded to two atoms, two bond pairs, and there is a lone pair on central atom as well, and so on and so forth. Let's go back to the columns. So the third column is labeled as picture. You need to learn to draw these pictures. इन पिक्चर्स को आपने ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है जी। तो पहली पिक्चर तो बहुत सीधी सी है, ए सिंगल बॉन्ड एक्स, इसमें तो कोई शेप बन भी नहीं रही, इसको हम सीधा सीधा लाइन के तौर पे लीनियर कहते हैं। इफ यू गो टू द शेप यू सी लीनियर, ठीक है जी। इसमें एक बॉन्ड पेयर है, बॉन्डेड एटम्स एक हैं, एक ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है, देयर इज नो लोन पेयर। और ज्योमेट्री इज लीनियर एंड ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज आल्सो लीनियर। एग्जांपल इज एनी diatomic molecule, any diatomic molecule. For example, hydrogen, nitrogen, oxygen, chlorine, bromine, fluorine, iodine. Any diatomic molecule comes in the category of AX. आप सवाल आपका सिर्फ ये होगा कि सर ऑक्सीजन की अगर हम एग्जांपल लें तो ऑक्सीजन जो है O डबल बॉन्ड O होता है, तो इसमें तो टू बॉन्ड पेयर्स हैं, बट व्हेन वी से बॉन्ड पेयर्स तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन डिसाइडिंग द शेप, डबल बॉन्ड and triple bond triple bond is formed between two atoms, so we take it as a single bond. We take it as a single bond. We take it as a single bond pair. Single bond pair. उसको हम सिंगल बॉन्ड पेयर के तौर पे ही लेंगे। तो O डबल बॉन्ड O को हम एज ए सिंगल बॉन्ड पेयर लेंगे, तो ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपका AX है, लाइक जैसे हाइड्रोजन है H सिंगल बॉन्ड H या F सिंगल बॉन्ड F। इसमें ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आप ला सकते हो। इसमें F2 भी आ सकता है, F2 क्लोरीन डायटोमिक होता है, Cl2, ठीक है जी। नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन में यू रिमेंबर ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो टेकन एज अ सिंगल बॉन्ड पेयर। अगर सिंगल बॉन्ड पेयर है और कोई लोन पेयर नहीं है तो ये सारे एग्जांपल जो हैं वो AX में आ जाती हैं। इन दैट केस सीधी लाइन का बॉन्ड एंगल क्या बनता है, लाइन का एंगल क्या होता है ऑन इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो वो 180 डिग्री का होता है। देन कम्स AX2। अगर आप उसकी तस्वीर भी देखो तो A इज सेंटर and two bond pairs on one side, one एक bond pair and the other side there is another bond pair, so two bond pairs and no lone pair, तो ये भी linear shape का होगा। अब इसमें if you see the example of beryllium chloride, the example of beryllium chloride, BeCl2, beryllium chloride और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और बेरिलियम क्लोराइड की शेप कुछ यूं होती है कि बेरिलियम इज सराउंडेड बाय टू एटम्स। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। Cl सिंगल बॉन्ड बेरिलियम and then single bond Cl. So this is a straight molecule, just like XAX, so ClBeCl. So the bond angle is 180 degree and the shape is linear. In this case, we know that bond pairs has to move away. तो बेरिलियम का एक बॉन्ड पेयर जो है वो एक साइड पर ऑन राइट हैंड साइड पे होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, या यू कैन से एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ए वन अबव एंड वन बिलो। So at this distance they are maximum far apart and there is a minimum repulsion. देखें रूल सिंपल है, ये शेप्स क्यों जनरेट होती हैं, why these shapes generate, because the central atom electron pairs need to be as far apart as possible to reduce repulsion. So to reduce repulsion, अगर आपका AX2 टाइप का है
तो 180 डिग्री इज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एंड स्पेस के जहाँ रिपल्शन मिनिमम होगी। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल अगर हम करें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, and I have just told you that double bond is taken to be as a single bond pair. That's why carbon dioxide is also comes in the category of AX2 and the bond angle is 180 degree and the shape of the molecule is called linear. तो ये आपने उनकी तस्वीर ऐसे ड्रॉ कर ली, एक्स ए एक्स, ए एक्स ई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पे चलते हैं जी, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसमें आपको AX3 मीन सेंट्रल एटम हैज़ बॉन्डेड विद 3 बॉन्ड पेयर्स। अगर उसमें कोई डबल बॉन्ड भी आ जाता है तो वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही कंसिडर होगा। तो 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। अगर ऐसा होगा तो ये 3 बॉन्ड पेयर्स जो हैं ये सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने एंगल तक जाके तो फिर और दूर नहीं हट सकेंगे, तो वो जाएंगे 120 डिग्री के एंगल तक। दे विल गो टू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स ए एक्स बॉन्ड एंगल जो है ये आपको 120 डिग्री का मिलेगा, 120 degree, and all these XAX bond angles are of 120 degree. Such shape is called trigonal planar. Trigonal planar, जिसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो एक BF3 की भी है जो आपने यू हैव लर्नड अबाउट दैट, ALCL3 की भी है, ALCL3 भी इसमें आता है। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर ALBR3 भी लिखा हुआ है। All these have this same trigonal planar shape. This is the maximum distance these bond pairs can go, और 120 डिग्री के ऊपर they all are uniformly present and they are well apart and their repulsions are minimized. और ये शेप ड्रॉ करना सीखनी है, BF3 की भी, ALCL3 की भी। तो अगर हम इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें यहाँ पर ड्रॉ करने की। सो इफ आई हैव बोरॉन, if I let me draw it slightly here. So 1F, then we have a boron, and then another F, and then another F. तो अगर मैं अब इसके साथ आपको दिखाता हूँ बॉन्ड्स को, तो इसमें से एक बॉन्ड जो है ये F के साथ ये बन गया, दूसरा बॉन्ड जो है वो ऐसे बन गया, और तीसरा बॉन्ड जो है वो ऐसे बन गया। All these bonds lie in the same plane. That's why we call them as planar. So they are all in one plane and their bond angles are 120 degree. All FBF bond angles are 120 degree. All these angles are of 120 degree. FBF bond angles are of 120 degree. 120 degree. ठीक है जी, 120 डिग्रीज में आप ला सकते हैं। तो ये शेप है जी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वी कैन हैव अ केस इन विच देयर इज अ लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड AX2E। उसका जेनेरिक फार्मूला जो है AX2E। AX2E स्ट्रेस द सेंट्रल एटम हैज 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो फिर देखें आप, सिर्फ फ़र्क क्या पड़ रहा है कि यू विल सी हेयर कि यहाँ पर एक जो है ना वो आपका लोन पेयर आ गया। तो एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स के ऊपर जो है यू हैव गॉट 1 लोन पेयर, वेयर एज 2 एक्सेस आर रिमेनिंग द सेम। तो अब आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास बाकी बचा है वो तो बस इतना सा रह गया, ये वाला और ये वाला। तो इसको हम, ये बॉन्ड रह गया आपके पास। यहाँ पर तो लोन पेयर आ गया हुआ है, लोन पेयर जो है वो शेप को अफेक्ट करता है पर शेप में नज़र नहीं आता। अब आपके पास जो बाकी बचा है वो XAX, इसको हम जो है वो कहते हैं XAX। यहाँ पर ये देख रहे हैं लोन पेयर आने की वजह से। तो अब आपके पास सिर्फ ये बॉन्ड एंगल है
इस शेप को अब हम बेंट कहेंगे, ये ट्राइगोनल प्लेनर से खत्म हो गया। ट्राइगोनल प्लेनर से शुरू हुआ, इट स्टार्टेड फ्रॉम ट्राइगोनल प्लेनर बट नाउ इट्स जस्ट अ बेंट शेप। एंड द बॉन्ड एंगल जो मैंने यहाँ पे भी लेबल किया है, दिस बॉन्ड एंगल विल बी, दिस बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। यह 120 डिग्री के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर विल कॉज द बॉन्ड पेयर्स टू स्क्वीज। ये देखिए इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसको प्रेस करेगा कि मेरे से दूर हटो। इधर से ये वाला भी प्रेस करेगा, इधर से ये इस तरफ से भी प्रेस करेगा, तो दोनों एक्स जो है दूसरे के करीब आ जाएंगे। एंड देन द बॉन्ड एंगल विल बी स्लाइटली लेस देन 120 एंड द शेप इज कॉल्ड बेंट शेप।